Good evening, all of you, and welcome back to Ansarkari. So, in today's session, we are taking up the history question from GS1 for the year 2020. So, the question is trace the rise and growth of the socio-religious reform movements with special reference to the Young Bengal and the Brahmo Samaj movement. So, these reform movements, they played a vital role in the national awakening during the freedom struggle, but they were they aimed to challenge the social levels like sati, child marriage, and they promoted equality. Now, coming specifically to the Young Bengal movement of the 1820s, so it challenged the Hindu orthodoxy, advocated for rationalism and liberal ideas. The main center was Calcutta and it was promoted by a group of radical thinkers. They were engaged in debates, discussions, and they formed literary societies. They published reform-oriented literature as well, and they worked for women upliftment, criticized the caste discrimination and child marriage. Then Brahmo Samaj, it was created in 1828. So the pioneer was Raja Ram Mohan Roy, and he promoted monotheism, rationality, and they abolished sati, promotion of women education. Further, it split into late 19th century. And both the social religious the reform movements, they played crucial role in intellectual awakening, promoting critical thinking, scientific temper, making the freedom struggle more meaningful. So you can provide your feedback. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ of socio-religious reform movement with special reference. रहेगा explain the social-religious reform movement with special reference to Young Bengal and Brahmo Samaj. आपका सही था 100%. यहाँ लिखा हुआ है trace the rise and growth. तो मतलब कि आप जो लिखे हैं वो सही कि आपने बता दिया कि ऐसे से हुआ है, एक दो पॉइंट हटा देते, जरूरत नहीं था, बड़ा हो जाता, और उसमें बस राइज एंड ग्रोथ बस कनेक्ट कर देते, कैसे राइज हुआ और ग्रोथ मतलब कि कैसे यंग बंगाल मूवमेंट और जो ब्रह्मो समाज है वो कैसे इन्फ्लुएंस किया अदर मूवमेंट को भी, वो बस 2 पॉइंट नीचे और ऊपर लेके आए थे, तो रेस राइज एंड ग्रोथ हुआ। बाकी आपने स्पेशल रेफरेंस तो बता ही दिया कि यंग बंगाल ऐसे हुआ, और हाँ, जो इन्होंने कैसे उनका जो डोमिनेट था, मेरे प्रार्थना समाज हो गया, धर्म सभा जो था बंगाल में वो कैसे अगेंस्ट थे इसके, लिंक तब भी दोनों का मिक्सचर के कारण ही कुछ रिफॉर्म मूवमेंट हो पाया। प्रार्थना समाज बता देते हैं महाराष्ट्र से, मद्रास महाजन सभा, आप कनेक्ट कर देते इसको, ठीक है, बस हो जाता, राइज एंड ग्रोथ हुआ था। ठीक है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीज मूवमेंट था वो, क्वेश्चन में स्पेशल फोकस था इसके, तो आप ओवरऑल बताते इसमें आज फोकस। हाँ, यही पॉइंट है, मतलब मेरे हिसाब से यही कॉमन रहेगा सबका, और किसी का अगर कोई न्यू पॉइंट है तो वो प्लीज बता सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, योर आंसर औशिक। मैंने बता दिया कि it had roots in Bengal, intellectual churning among the young Bengal and later Brahmo Samaj led to the rise of reform movement in North and South India. The idea of India emerged at a nascent stage. मैंने इसे बता दिया यंग बंगाल, और साथ ही साथ नीचे में सेम हो कि रिवोल्यूशन लिबर्टी कैसे प्रमोट किया, और उसके बाद फिर नीचे मैंने उसका बता दिया ब्रह्मो समाज का, लेकिन लास्ट में मैंने बता दिया ब्रह्मो समाज में कि हाउ इट प्रोफेस द आइडियाज इन मद्रास एंड बॉम्बे, thus their ideas, thought and progress societal value inspired leaders to work through organizations like Prarthana Samaj in Maharashtra and Madras Mahajan Sabha and Madras. थोड़ा सा कनेक्ट करती, सेम बता, लेकिन जो चीज आप मेरे आंसर में हाईलाइट करे थे मेरे को वो मिसिंग लग रही है आपके आंसर में भी। मतलब इसका जो ये दो मूवमेंट स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करनी थी, एक कैसे इमर्ज हुई, कैसे राइज हुई, क्या फैक्टर्स थे इनकी ग्रोथ की, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल थे इनकी क्या फैक्टर्स है, राइज ट्रेस, बस व्हाट आर द फैक्टर्स, बस ट्रेस द राइज, हाँ बता हाँ, दो राइज, बता दो बस तो उसमें दोनों का। फैक्टर्स ही तो आएंगे, राइज एंड ग्रोथ, आपने ग्रोथ नहीं लिखा हुआ है, ग्रो कैसे हुई, ऑपोजिशन हुआ, फिर उन्होंने उसको कैसे डील किया, तो उसी के बाद तो वो ग्रो हुई होंगी। तो जो मतलब पॉइंट आपने मेरे उसके लिए हाईलाइट किया, तो मेरे को वो मिसिंग लग रहा है, बस मैं इतना बोलूंगी। अब पर्सनालिटीज लेके आए हो, किन एरियाज में उन्होंने वर्क किया, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मतलब जो मैंने भी इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है कि जो उनके फीचर्स से किन एरियाज में उन्होंने काम किया, क्या पर्सनालिटीज थी, वो शॉर्ट में आ सकता था 2-3 सेंटेंसेस में। बाकी उनका ग्रोथ, मतलब किन्होंने उनको अपोज किया, वो फैक्टर ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए था।
ऑक्सी बोलना प्रवेश सचिन। एक बार क्वेश्चन ऊपर चलना है, ये पहले पेज पे। ये क्वेश्चन जो आपने पढ़ा ना, उसे ट्रेस द राइज ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो पहला ये आपका जो पूरा आंसर है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, दिख भी रहा है और समझ में भी कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि आप मतलब शुरुआत आपने की सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट्स है उनकी रूट्स बंगाल में है। इंटेलेक्चुअल टर्निंग हुई अमंग मेंबर्स ऑफ यंग बंगाल, लेटर ब्रह्मो समाज जिसने रिफॉर्म किया, मतलब मूवमेंट लाए साउथ नॉर्थ में। पर आइडिया ऑफ इंडिया वाया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ये इसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब द आइडिया ऑफ इंडिया वाया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाज एट नासेंट स्टेज। उसके बाद आपने जो पहले वाले आंसर में देखने को मिला था कि पहले यंग बंगाल को समझा दिया, उसके बाद ब्रह्मो समाज को समझा दिया। तो बेसिकली क्वेश्चन इतना टेक्निकल होने के लिए बोल नहीं रहा। क्वेश्चन सिंपली आपसे ये कह रहा है कि भाई जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं उनका मतलब आप बताइए कि मतलब उनको ट्रेस कीजिए विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड जो ब्रह्मो समाज है। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में दो लाइनें पहले बता देते कि नीड क्या थी। दूसरा आप ये बता देते कि भाई जो सोशल मूवमेंट थे उनमें एक या दो जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिनके ऊपर मूवमेंट चालू हुए वो क्या थे, रिलीजियस में क्या थे, सती का, वुमेन का, विडो का, पर्दा का, अलग अलग चीजें थी, वो कहीं भी मेंशन नहीं है। दूसरा ये कि मतलब आपने जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी भरमार कर दिया। मतलब यंग बंगाल में आपने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, ब्रह्म समाज में इतने लोगों का नाम आ गया, केशव चंद्र सेन का आ गया है, और ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी का आ गया है। आदि ब्रह्मो समाज, समाज ऑफ इंडिया, मतलब कोई जरूरत थी? या आप सिंपली बताते ना, मतलब इनकी जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है उसमें इनका क्या योगदान है। देवेंद्र नाथ टैगोर जी के आदि ब्रह्मो समाज ने क्या किया वो तो दिख ही नहीं रहा। केशव चंद्र जी के ब्रह्मो समाज ने क्या किया वो नहीं दिख रहा। और लास्ट में जो आपने कंक्लूजन में दिया है कि thus their ideas and thoughts are progress of societal value inspired leaders to work through organization like Prarthana Samaj in Maharashtra and Madras. So why only these two specific names you have given in the answer? प्रार्थना मतलब और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, वी रीड इन द हिस्ट्री, मतलब देयर वर एम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई स्पेसिफिकली दीस टू? हाँ, मतलब कंक्लूजन जब आप लिखो सोचते हो तो थोड़ा ब्रॉड सोचना चाहिए, नॉट दैट स्पेसिफिक। कंक्लूजन में तो ब्रॉड थिंकिंग आनी चाहिए कि मतलब इम्पैक्ट लेके आ सकते हो। आप ये बताते कि सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट उस टाइम पे शुरू हुए, आज के टाइम पे इंडिया उनसे क्या सीख सकता है, इस तरीके का कंक्लूजन हो जाता, थोड़ा कॉन्टेम्पररी हो जाता। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। Reform movements arise against the practices mentioned कर दिया है, respect to awakening with the common masses, clarity. मैं बोलूंगी अच्छा लिखा है आंसर, मतलब ट्रैक पे है, इतना कुछ वो नहीं लग रहा। थोड़े और एलिमेंट्स हो सकते थे, मतलब ग्रोथ से रिलेटेड, बट सिंपल लिखा आंसर। बोलो अब बाकी सब क्या फीडबैक देना। आंसर में सेंटेंस छोटा होता, बाकी फिर आंसर के इन्होंने अंदर बोलो, उचित बोलो। हाँ इन्होंने एलिमेंट लेके आया है पूरा अच्छे तरीके से। यंग बंगाल नीचे में ब्रह्मो समाज कनेक्ट कर दिया। इन्होंने बेसिक समझाया नहीं हम लोग जैसे, हाँ, इन लोगों ने बेसिक टेक्निकल लोग नहीं कनेक्ट लग कर दिया। हाँ
हाँ टेक्निक नहीं लग रहा बिल्कुल भी। बस के सेंटेंस छोटा होता तो और अच्छा बढ़िया आंसर होता। सेंटेंस बहुत ज्यादा बड़ा रहता है तो उसमें ऐसा अच्छा है। बोले प्रवेश। बस यही है जो तुमने बोला वही बात। ठीक है, so that's all for this session, and I hope you have understood the key things that we have raised. And like, it's important to first understand what the question is demanding, and then we need to think beyond that. So that's all. Thank you so much for joining us in this session, and stay connected with us.